Hello students, today we'll start with our first chapter of English, that is the wish. Now link it what we'll study in this chapter. This story, a little boy makes a wish. Do you want to know if his wish comes true? तो इस स्टोरी में एक छोटा सा बच्चा है जो एक विश मांगता है और हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या उसकी वो विश पूरी होती है या Life seldom turns out the way he expects. The house in Dehra had to be sold. My father had no money left. He had never realized that his health would deteriorate so rapidly from the malarial fevers which had grown in frequency. He was still planning for the future when he died. Now that my father was gone, grandmother saw no point in staying on in India. There was nothing left in the bank and she needed money for our passage to England. So the house had to go. Dr. Ghosh, who had a thriving medical practice, Dhara, made her a reasonable offer which she accepted. तो हमें नहीं पता कि लाइफ कब कोई अनएक्सपेक्टेड टर्न ले रही, तो जो देहरा का घर था ऑथर का उसे बेचना जरूरी था कि जो ऑथर के फादर थे अब उनके पास कोई पैसे नहीं बचे थे, तो पता भी नहीं चला कि कब उनकी हेल्थ जरूरत से ज्यादा खराब होती चली गई। उनकी हेल्थ अचानक से एकदम बहुत ही ज्यादा खराब होती चली गई। जो मलेरिया फीवर्स थे वो फ्रिक्वेंसी में बढ़ गए, वो बढ़ने लगा। जब उनकी डेथ हुई तो वो तब भी अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे और अब जब ऑथर के फादर की डेथ हो गई थी तो उनकी ग्रैंड मदर को कोई भी पॉइंट नहीं दिख रहा था कि भला वो इस इंडिया में क्यों रहे, क्योंकि अब यहाँ पर उनके लिए कुछ नहीं बचा था। फादर जा चुके थे, क्या ऑथर के फादर जा चुके थे, बैंक में पैसे भी नहीं थे और उनको पैसों की जरूरत थी इंग्लैंड जाने के लिए, तो घर को बेचना जरूरी था। डॉक्टर घोष जो कि देहरा में ही मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्होंने उनको एक रीजनेबल ऑफर दिया और दादी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। देन थिंग्स हैपेंड वेरी क्विकली। Grandmother sold most of our belongings because, as she said, we wouldn't be able to cope with a lot of luggage. The Kabaris came in droves, buying up crockery, furniture, carpets, and clothes at thrown away prices. तब के बाद सारी चीजें बड़ी ही तेजी से होने लगी। ग्रैंडमदर ने कहा कि उन्हें सारी बिलोंगिंग्स को बेचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने साथ इतना सारा सामान लेकर नहीं जा सकते। कबाड़ी वाले आए और जो भी सामान था, क्रॉकरी थे, कारपेट्स थे, क्लॉथ्स था, फर्नीचर था, वो उस प्राइस पर ले गए। Grandmother hated parting with some of her possessions, such as the carved split-wood mirror, her walnut-wood armchair, and her rosewood writing desk. But it was impossible to take them with us. They were carried away in a bullock cart. जो ग्रैंड मदर थी, उनके पास जो कुछ चीजें थी उससे दूर जाना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, या उन्हें बेचना, चीजों को बेच देना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, जिसमें उनका कुछ कार्व्ड गिल्ट वुड मिरर शामिल था, वॉलनट वुड की बनी आर्म चेयर थी, रोजवुड की राइटिंग डेस्क थी। लेकिन इन सबको बेचना जरूरी था क्योंकि ये सब वो अपने साथ नहीं लेकर जा सकते थे। उन्होंने देखा कि कैसे ये सारा सामान बैलगाड़ी पर लाद के ले जाया गया। Aya was very unhappy at first, but cheered up when grandmother got her job with a tea planter's family in Assam. It was arranged that she could stay with us until we left Dehra. आया पहले तो काफी उदास थी, लेकिन बाद में वो खुश हो गई। बाद में उसे सब अच्छा लग रहा था क्योंकि ग्रैंड मदर ने कि टी प्लांटर एक फैमिली है जो टी प्लांट करती है, उनके यहाँ असम में जॉब लगवा दी थी। तो इस जॉब के टाइमिंग को इस तरीके से अरेंज किया गया था कि जब तक ऑथर और उनकी ग्रैंड मदर देहरा छोड़ नहीं देते तब तक अया उनके साथ ही रहेगी। We went at the end of September, just as the monsoon clouds broke up, scattered,
and were driven away by soft breezes from the Himalayas. There was no time to revisit the island where my grandfather and I had planted our trees, and in the urgency and excitement of the preparations for our departure, I forgot to recover my small treasures from the hole in the banyan tree. It was only when we were in Bansi's Tanga on the way to the station that I remembered my top, catapult, and iron cross. Too late to go back for them would mean missing the train. अब जो ऑथर थे और उनकी ग्रैंड मदर थी उन्हें सितंबर के एंड में ये सब छोड़ के जाना था जब मानसून के क्लाउड्स निकलते और फैल जाते, लेकिन हिमालय से आ रही हवाएं उन्हें कहीं दूर ले जाती। अब उनके पास समय नहीं था कि वो उस आइलैंड पर जाते, उस आइलैंड को विजिट करते जहां पर ग्रैंडफादर और ऑथर ने साथ में मिलकर पेड़ लगाए थे। प्रिपरेशंस, जाने की तैयारियों में इतने ज़्यादा बिजी थे, इतनी सारी एक्साइटमेंट थी और अर्जेंसी थी कि जल्दी यहाँ से निकलना है कि ऑथर ने बरगद के पेड़ में एक होल था जहां अपनी कुछ सामान रखा था, अपनी कुछ चीजें छुपाई थी जो कि वो अपने साथ ले जाना ही भूल गए। और जब तक उन्हें याद आया तब तक वो बंसी के तोंगा में थे और काफी दूर आ चुके थे और अब देर हो गई थी। अगर वो सामान को लेने जाते यानी कि उनकी ट्रेन छूट जाती। Hurry, urged grandmother nervously. We must not be late for the train, Bansi. ग्रैंडमदर कहती हैं कि जल्दी करो, हमें ट्रेन के लिए देरी से नहीं पहुंचना है बंसी। बंसी flicked the reins and shouted to his pony. And for once in her life, grandmother allowed herself to be carried along the road at a brisk trot. तो बंसी ने तांगा की रस्सियां खींची और अपने पोनी पर चिल्लाता हुआ कहा कि आगे बढ़ने के लिए अपने घोड़े को कहा। ग्रैंडमदर ने पहली बार अपने आप को अलाउ करा कि तांगा इतनी स्पीड में उन्हें लेकर जा रहा हो। It's 5 to 9, she said. The train leaves at 9. ग्रैंडमदर कहती हैं कि 9 बजने में बस 5 मिनट बचे हैं और 9 बजे ट्रेन निकल जाएगी। Don't worry, मेम साहिब. I have been taking you to the station for 15 years and you have never missed a train. तो बंसी कहता है कि मैम साहब आप परेशान ना हो, मैं आपको पिछले 15 सालों से स्टेशन लेकर जा रहा हूँ और आज तक आपकी एक भी ट्रेन नहीं छूटी। No, said grandmother, and I don't suppose you will ever take me to the station again, बंसी। ग्रैंडमदर कहती हैं कि हाँ नहीं छूटी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे अब कभी भी फिर से स्टेशन लेकर के जाओगे। Times are changing, मैम साहिब. Do you know that there is now a taxi motor car with the Tongas of Dera? You are lucky to be leaving. If you stay, you will see me starve to death. तो बंसी कहता है कि समय बदल रहा है मैम साहब। क्या आपको पता है कि अब टैक्सी मोटर कार चलने लगी है तोंगा के साथ? आप बहुत लकी हो कि आप यहाँ से जा रही हो। अगर आप यहाँ रुकती तो आप देखती कि कैसे मैं भूख से मरने वाला हूँ। We will starve to death if we don't catch that train, said grandmother. ग्रैंडमदर कहती हैं कि हम भूख से मर जाएंगे अगर हमने उस ट्रेन को समय पर नहीं पकड़ा। Do not worry about the train. Never leaves on time, and no one expects it to. If it left at 9 o'clock, everyone would miss it. तो बंसी कहता है कि आप चिंता मत करो, ट्रेन कभी भी अपने टाइम पे नहीं चलती और कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि वो अपने टाइम से निकलेगी, क्योंकि अगर वो 9 o'clock पर ही निकली, 9 बजे ही निकली, तो हर कोई अपनी ट्रेन मिस कर देगा। Bansi was right. We arrived at the station at 5 minutes past 9 and rushed on the platform, only to find that the train had not yet arrived. तो बंसी सही कह रहा था। जब तक ऑथर और उनकी ग्रैंडमदर स्टेशन पर पहुंचे तब 9:05 हो चुके थे और अभी भी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन नहीं आई थी। The platform was crowded with people waiting to catch the same train or to meet people arriving on it. Aya was there already, standing guard over a pile of luggage. We sat down on our boxes and become part of the platform life at an Indian railway station.
तो उन्होंने देखा कि जो प्लेटफॉर्म है वहां पर बहुत सारी भीड़ है। वहां पर लोग हैं जो ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उसी ट्रेन में सफर करना है, और कुछ लोग वहां पर हैं जो कि उस ट्रेन से आ रहे लोगों का इंतजार कर रहे हैं। आया वहां पर ऑलरेडी पहुंच चुकी थी और उनके लगेज पर नजर रखे हुए थी। तो जो ऑथर हैं और उनकी दादी जाकर अपने बॉक्सेस पर बैठ जाते हैं और उसी इंडियन रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म लाइफ का पार्ट बन जाते हैं। मूविंग अमंग piles of beddings and luggage were sweating, cursing coolies, vendors of magazine, street meats, tea, betel leaf preparation, also stray dogs, stray people, and sometimes a stray station master. The cries of the vendors mixed with the general noise of the station and the shunting of the steam engine in the yard. Tea hot. अब जब वो स्टेशन पर बैठे तो उन्होंने देखा कि कैसे पुलिस हैं वो सामान लेकर के जा रहे हैं, मैगजीन बेचने वाले घूम रहे हैं, मिठाइयाँ बेचने वाले हैं, चाय बेचने वाले, ऐसे ही स्ट्रे डॉग्स भी घूम रहे हैं, कुछ लोग घूम रहे हैं, स्टेशन मास्टर भी इधर उधर घूम रहे हैं। अलग अलग वेंडर्स की आवाजें आ रही हैं जो स्टेशन की जनरल आवाज के साथ घुलती जा रही हैं, और कैसे स्टीम इंजन की आवाज आ रही है, जो वेंडर्स हैं वो भी चिल्ला रहे हैं कि चाय, स्वीट्स है, वहां पर पापड़ है, हॉट स्टफ, कोल्ड ड्रिंक, टूथ पाउडर, पिक्चर्स ऑफ फिल्म स्टार्स, बनानास, बैलून्स, वुडन टॉयज, क्ले इमेजेस ऑफ गॉड्स, ये सभी प्लेटफॉर्म पर बिक रहा है। द प्लेटफॉर्म हैड बिकम अ बाजार, प्लेटफॉर्म एक बाजार बन गया है। आया वॉज गिविंग मी ऑल सॉर्ट्स ऑफ वार्निंग, और वहां पर आया ऑथर को हर तरीके की चेतावनी दे रही थी। Remember, Baba, don't lean out of the window when the train is moving. There was that American boy who lost his head last year. And don't eat rubbish at every station between here and Bombay. And see that no strangers enter the compartment. तो आया कहती हैं कि बाबा याद रखना कि खिड़की से बाहर अपना हाथ, अपना सर मत निकालना। एक अमेरिकन बॉय था जिसका सर पिछले साल कट गया इसी वजह से, और हर स्टेशन पर उतर के कुछ उल्टा सीधा मत खाने लगना जब तक आप बॉम्बे नहीं पहुंच जाते, और देखना कि तुम्हारे कंपार्टमेंट में कभी कोई अजनबी आके ना बैठे। मिस्टर विल्किंस वॉज रॉब्ड एंड मर्डर्ड लास्ट ईयर। मिस्टर विल्किंस पिछले साल उन्हें लूट लिया गया था और उनका मर्डर हो गया था ऐसे ही। द स्टेशन बेल clanged, and in the distance there appeared a big puffing steam engine painted green and gold and black. As the train came alongside the platform, doors opened, window shutters fell, faces appeared in the openings, and even before the train had come to a stop, people were trying to get in or out. तभी स्टेशन पर बेल बजने की आवाज आई और कुछ दूरी से वो देख सकते थे कि एक बड़ा सा इंजन है जो कि ग्रीन, गोल्ड और ब्लैक कलर का है, जो उनकी तरफ आ रहा है। ट्रेन जैसे जैसे प्लेटफॉर्म पर आने लगी उसके दरवाजे खुलने लगे, खिड़कियां गिरने लगी और ओपनिंग उनके सामने आ गई। इससे पहले कि ट्रेन रुकती, कई लोग उसमें चढ़ने और कई लोग उससे उतरने की कोशिश करने लगे। For a few moments, there was utter confusion. The crowd surged backward and forward. No one could get out, no one could get in. 100 people were leaving the train, 200 were getting into. No one wanted to give way. कुछ देर तक तो वहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रह गई। क्यों? क्योंकि क्राउड जो थी, जो भीड़ थी, वो आगे जा रही, कभी पीछे जा रही, कोई भी बाहर नहीं आ पा रहा था और ना ही कोई अंदर जा पा रहा था। करीबन 100 लोग थे जो ट्रेन से बाहर आना चाहते थे और 200 लोग थे, 200 पीपल थे जो ट्रेन में अंदर जाना चाहते थे, लेकिन कोई भी दूसरे को रास्ता देने के लिए तैयार नहीं था। A man climbing out of a window solved the problem. Others followed his example, and the pressure at the doors eased and people started squeezing into their compartments.
तभी एक आदमी अपनी खिड़की से बाहर निकल के आता है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। बाकी भी उसी के तरीके को फॉलो करने लगते हैं और ट्रेन के डोर्स पर जो प्रेशर था वो कम होने लगता है। लोग जाकर अपने कंपार्टमेंट्स में बैठने लगते हैं। Grandmother had taken the precaution of reserving berths in a first class compartment, and assisted by Bunsey and half a dozen police, we were soon inside with our entire luggage. A whistle blasted and we were off. Bunsey had to jump from the train. ग्रैंड मदर ने पहले ही एक प्रिकॉशन ले रखा था कि उन्होंने पहले ही अपनी बर्थ को रिजर्व कर लिया था फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में। बंसी और लगभग हाफ अ डजन कुलीज ने उनके सामान को अंदर ले जाने में उनकी मदद करी और कुछ ही देरी में उनका सारा सामान अंदर आ गया। तभी एक सीटी सुनाई देती है और ट्रेन चलने लगती है कि बंसी को ट्रेन से कूदना पड़ता है। As the engine gathered speed, I ignored Aya's advice and put my head out of the window to look back at the receding platform. Aya and Bansi were standing on the platform, waving to me, and I kept waving to them until the train rushed into the darkness and the bright lights of Dara were swallowed up in the night. New lights, dim and flickering, came into existence as we passed small villagers. The stars, too, were visible, and I saw a shooting star streaking through the heavens. अब जैसे जैसे इंजन ने स्पीड पकड़ी, जो ऑथर थे उन्होंने आया की एडवाइस को इग्नोर करते हुए अपना सर खिड़की से बाहर निकाल दिया और उस पीछे निकलते हुए प्लेटफॉर्म की तरफ देखने लगे। आया और बंसी वहां पर उनको वेव कर रहे थे, बाय कर रहे थे और ऑथर भी उनको वेव करने लगा जब तक वहां से वो गायब ना हो गए। वो आगे काफी नहीं निकल गए कि उन्हें पीछे अब दिख नहीं रहा और उस स्टेशन की सारी लाइट्स अब उस तरह की लाइट्स उन्हें नहीं दिख रही थी। वो डार्कनेस में आगे निकल गए क्योंकि अब रात हो रही थी, तो उस पूरी रात ने वहां की लाइट्स को फॉलो कर लिया। अब आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें कई विलेजेस पास करने थे, कई विलेजेस से होके गुजरना था। तो ऐसे ही कई विलेजर्स की लाइट्स डिम फ्लिकरिंग उन्हें दिखने लगी। तभी उन्हें आसमान में एक टूटता हुआ तारा भी नजर आया जो मानो हेवन से गिर रहा हो। I remembered something that Aya had once told me, that stars are the spirits of good men. I wondered if that shooting star was a sign from my father that he was aware of our departure and would be with us on our journey. And I remember something else that Aya had said, that if one wished on a shooting star, one's wish would be granted, provided, of course, that one thrust all five fingers into the mouth at the same time. तभी ऑथर को याद आता है कि आया ने उनसे कुछ कहा था कि जो ये टूटते तारे हैं ये अच्छे लोगों की स्पिरिट्स होती हैं। तो ऑथर ये वंडर करने लग गए, ये सोचने लगे कि क्या जो ये टूटता हुआ तारा है ये उसके पिता की तरफ से, उसके फादर की तरफ से एक साइन है कि उसके फादर को पता है कि वो लोग यहाँ से जा रहे हैं और उसके फादर दिखाना चाहते हैं कि वो भी इस सफर में उनके साथ हैं। फिर ऑथर को एक और चीज याद आती है जो आया ने कही थी कि अगर कोई शूटिंग स्टार से कोई विश करता है, कोई विश मांगता है, तो उसकी विश पूरी होती है, प्रोवाइडेड, लेकिन एक कंडीशन क्या कि दैट वन थ्रस्ट ऑल फाइव फिंगर्स इनटू द माउथ एट द सेम टाइम। एक इंसान को अपनी पांचों उंगली अपने मुंह में एक साथ रखनी पड़ेंगी। What on earth are you doing? asked grandmother, staring at me as I thrust my fist into my mouth. तो जब ऑथर अपनी मुट्ठी को अपने मुंह में डालने लगे तो ग्रैंड मदर उनकी तरफ देख के कहती कि आखिर तुम कर क्या रहे हो? मेकिंग अ विश आई सेड। ऑथर कहते हैं कि मैं एक विश मांग रहा हूँ। ओ सेड ग्रैंड मदर। She was preoccupied and didn't ask me what I was wishing for, nor did I. ग्रैंड मदर पहले से बिजी थी तो उन्होंने नहीं पूछा ऑथर को कि आखिर वो क्या मांग रहे हैं, उनकी विश क्या है,
और ना ही ऑथर ने अपनी दादी को बताया। We never made it to England. Grandmother passed away after a brief illness in Lucknow. Auntie Emily, in whose house we were staying before going on to Bombay, boarded our ship to England. Arrangements for her funeral and for me to be sent back to Dehra. My father's cousin, Mr. John Harrison, who lived in Dehra, agreed to let me stay with him and attend the day school in town. ऑथर बताते हैं कि वो कभी भी इंग्लैंड गए ही नहीं। लखनऊ में अपनी बीमारी के चलते ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है कुछ ही समय में, और आंट एमिली, जिनके घर वो लखनऊ में रुके हुए थे इससे पहले कि वो बॉम्बे सफर करते और जाकर इंग्लैंड में जा रही शिप पर बैठते, आंट एमिली ने वहां पर दादी के फ्यूनरल की तैयारियां की और ये भी तैयारियां की कि ऑथर को वापस देहरा भेजा जा सके। वहां पर उनकी फादर के, ऑथर के फादर के भाई थे, कजन थे, का नाम था मिस्टर जॉन हैरिसन, जो कि देहरा में ही रहते थे और वो ने कहा कि ये मेरे साथ ही रहेगा और यहाँ पर ये स्कूल दिन में अटेंड कर सकता है, इसी शहर का स्कूल वो यहाँ अटेंड कर लेगा। By a strange twist of fate, therefore, my wish to return to Dehra was coming true after all. I did not know if it was something to not look forward to or dread. अब लेकिन किसी अजीब वे में, एक ट्विस्ट ऑफ फेट में, एक अनएक्सपेक्टेड चेंज के जरिए जो ऑथर थे उनकी देहरा वापस जाने की इच्छा, उनकी वापस जाने की विश फाइनली ट्रू हो रही थी। यस, उनकी वो इच्छा फुलफिल हो रही थी, सच हो रही थी। लेकिन अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, उनको पता नहीं था कि अब उन्हें आगे की तरफ देखना चाहिए, ये फ्यूचर को देख के थोड़ा सा डरना चाहिए कि आखिर अब क्या होगा। ठीक है, तो स्टोरी किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने। हमने इस स्टोरी में पढ़ा कि कैसे ऑथर हैं, उनको उनके फादर की डेथ के बाद फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से इंडिया को छोड़ के जाना होता है, लेकिन वो जाना नहीं चाहते, वो अपने शहर ही रहना चाहते हैं, जिसके लिए वो विश करते हैं और इन दी एंड उनकी ये विश पूरी भी होती है। नाउ वी केम अक्रॉस अ फ्यू न्यू वर्ड्स इन दिस चैप्टर। सेल्डम यानी कि रेयरली, मुश्किल से, कभी कभार। डिटेरिएट यानी कि बिकमिंग वर्स, और बुरा होता जाना। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ टाइम्स समथिंग हैपन इन अ पर्टिकुलर पीरियड, एक पीरियड में कोई चीज कितनी बार हो रही है उस नंबर ऑफ टाइम्स को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। थ्राइविंग यानी कि सक्सेसफुल। ड्रोव्स यानी कि इन लार्ज नंबर, बहुत बड़ी संख्या में। ब्रिस्क ट्रॉट, यूज्ड फॉर हॉर्सेस मूविंग फास्ट, यानी कि घोड़ों का जल्दी चलना। शंटिंग यानी कि मूविंग अ ट्रेन और अ कैरेज फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर ट्रेन को या किसी कैरेज को मोड़ना। क्लैंग यानी कि तेजी से बजना, बहुत लाउडली, क्लैंग लाउडली। सर्च्ड यानी कि मूव क्विकली एंड फोर्सफुली फॉरवर्ड, जल्दी से और फोर्सफुली आगे की तरफ बढ़ना। प्रिकॉशंस यानी कि आपने पहले ही कुछ करा ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो। समथिंग यू डू इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर। रिसीडिंग यानी कि मूविंग अवे एंड बिगिनिंग टू डिसअपियर, दूर होते जाना और फिर गायब होते जाना। सॉलोड अप यानी कि कुड नो लॉन्गर बी सीन, अब नहीं देखा जा सकता। ट्रीकिंग यानी कि मूविंग वेरी फास्ट, बहुत तेजी से मूव करना। ट्विस्ट ऑफ फेट यानी कि अनएक्सपेक्टेड चेंज और डेवलपमेंट, कुछ ऐसा होना जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि होगा। ड्रेड यानी कि फियर, डर। नेक्स्ट we have few questions in this chapter. First, mark the correct option. The house was in, घर कहाँ पे था? देहरा में, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, grandmother got आया a job of, ग्रैंडमदर ने आया के लिए कौन सी जॉब ढूंढी? टी प्लांटर की, ठीक है, ऑप्शन डी।
Next, grandmother asked dash, we must not be late for the train. ग्रैंडमदर ने किससे कहा कि हमें ट्रेन के लिए देर से नहीं पहुंचना? बंसी से, ऑप्शन सी. नेक्स्ट, who have been taking मैम साहिब टू स्टेशन फॉर 15 years. मेम साहिब को पिछले 15 सालों से स्टेशन कौन लेकर जा रहा था? बंसी, ऑप्शन सी. नेक्स्ट, and I don't suppose you will ever take me to the station again, Bansi. Grandmother said these words because. ग्रैंडमदर ने ऐसा क्यों कहा कि अब मुझे नहीं लगता कि तुम हमें कभी भी वापस से स्टेशन लेकर के जाओगे बंसी. ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उनकी फैमिली देहरा को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही थी. फैमिली वॉज लिविंग देहरा फॉरएवर. Now, next question, fill in the blanks. First, father died rapidly from the dash fevers. ऑथर के फादर की डेथ कैसे हो गई? मलेरियल फीवर्स की वजह से. नेक्स्ट, ग्रैंडमदर सॉ नो पॉइंट इन स्टेइंग इन डैश. ग्रैंडमदर को अब कोई पॉइंट ही नहीं दिख रहा था कि वो कहाँ रुके? इंडिया में. तो वो इंडिया छोड़ के जाना चाह रही थी. नेक्स्ट, ग्रैंडमदर हेटेड पार्टिंग विद सम ऑफ हर डैश. ग्रैंडमदर को अपनी किन से दूर जाने में दुख हो रहा था? अपने पोजेशन से. उनके पास जो कुछ चीजें हैं उसको वो बेचना नहीं चाहती थी. नेक्स्ट, आया गॉट अ जॉब विद द टी प्लांटर्स फैमिली इन. आया को एक जॉब मिली टी प्लांटर फैमिली में. कहां पर? असम में. असम में. नेक्स्ट, द प्लेटफॉर्म वॉज डैश विद पीपल. जो प्लेटफॉर्म था वो लोगों से भरा हुआ था, क्राउडेड था. Was crowded with people. Next, the dash boy lost his head last year. पिछले साल किस लड़के ने अपना सर खो दिया था? अमेरिकन बॉय ने. Next, the narrator's wish to return to dash was coming true. नैरेटर की कौन सी विश पूरी हो रही थी? देहरा वापस आने की. अपने टाउन वो वापस आ रहे थे. Now, all the other questions you will do it yourself so that you can understand this chapter better. And this finishes our chapter. Now for the next lesson, we will continue in our next class. Till then, have a nice day.